একটা সেল ওয়াল যদি একদম স্টিফ হয়, খুব শক্ত হয়, তাহলে ওর ভিতরের সেলটাও চাইলেও আর বড় হতে পারবে না। তো এই সেল ক্যানট গ্রো if the cell wall does not allow. You know why the color of urine is yellow? I just have to collect one piece of your old cloth. एक सेल मिल गया मतलब 46 डीएनए मिल गया। তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনটা আগে বসবে কোনটা পরে বসবে, এই জিনিসটা কোড। एक अमाइनो एसिड चेंज होने से पूरा प्रोटीन चेंज हो सकता है। So let's start cell wall. So cell wall is composed of cellulose and chitin. So major composition of cell wall is cellulosic in plant cells and chitinous in fungal cell. Cell wall is formed by the process, or in living world also we have seen that process called intussusception. So a new cell wall is formed by the process of intussusception. Golgi body of plant cell. Golgi body is also called ichthyosome. Helps in formation of membrane bound vesicles. So Golgi body कुछ वेसिकल फॉर्म करेगा, so it helps in formation of membrane bound vesicles that carries cell wall materials. तो सेल वॉल बनाने के लिए जो भी चाहिए, those materials are carried by some membranous bag which are formed by Golgi body. तो Golgi body कुछ बैग बनाएगा, मेम्ब्रेन का बैग, एंड उस बैग के अंदर सेल वॉल बनाने के लिए जो भी चाहिए वो रहेगा. Those membrane bound vesicles, वो जो बैग है membrane bound, those vesicles are called phragmosome. So phragmosome are the name of those bags or membranous bags that helps in the formation of cell wall. Phragmosomes combine এমন টাইপের অনেকগুলো ব্যাগ, so many membranous bag combine to form a structure called cell plate.
तो सेल प्लेट फॉर्मेशन, तो सेल, हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेल वॉल कैसे बनेगा। सेल वॉल प्लांट में सेलुलोज इज द मेजर कंपोजिशन, फंगस में काइटिन इज द मेजर कंपोजिशन. When cell wall is formed, this is called intussusception. Golgi body, plants में इसका नाम है dictyosome. It helps in the formation of those vesicles. These vesicles which carry cell wall materials are called phragmosome. Phragmosome, एक phragmosome दूसरे phragmosome के साथ मिलकर एक structure बनाएगा, that is cell plate. Cell plate, finally, cell plate give rise to सेल वॉल, और इस सेल वॉल को हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल. तो सेल प्लेट से जो सेल वॉल बनेगा दैट इज प्राइमरी सेल वॉल. तो सेल प्लेट गिव राइज टू प्राइमरी सेल वॉल. अब देखो, प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. तीन अलग अलग सब्सटेंस है जो प्राइमरी सेल वॉल में रहेगा. मेजर कंपोजिशन इज ऑब्वियसली सेलुलोज, बट सेलुलोज को छोड़कर भी देयर आर टू अदर मटेरियल. ये क्या हुआ? जाओ जाओ जाओ, गो टू वॉशरूम. AC is in 18 डिग्री सेल्सियस. 16 कर सकते हो. Pectin helps in attachment of one cell with another. But আমি এটা একটু পরে আসছি. ফার্স্ট দেখো কি, ফার্স্ট what are these substances? Cellulose, hemicellulose and pectin, ये क्या है actually? Are they protein? Are they fat? Are they carbohydrate? क्या होगा ये? कार्बोहाइड्रेट. तो ये तीनों cellulose, hemicellulose and pectin, all of them are carbohydrate, or you can say polysaccharide. Cellulose, hemicellulose and pectin, all of them are polysaccharide. So primary cell wall is composed of cellulose, hemicellulose and pectin. Now, pectin में I'm coming to pectin, but that is in middle lamella. पहले ये देख लेते हैं कि ये primary cell wall को we can write it as 1 degree cell wall. Primary or 1 degree cell wall. Primary cell wall allows growth of cell. The primary cell wall allows growth of a cell by expanding. तो देखो, प्राइमरी आरेक्टा नाम 1 डिग्री. It allows growth of cell by expanding. So primary cell wall can expand. This expansion of primary cell wall is stimulated by expansion টা হবে কার কারণে? So name just one plant hormone. क्या नाम है एक plant hormone का? Auxin. So auxin is the most dominant plant hormone. So expansion of primary cell wall is stimulated by auxin. Auxin एक plant hormone है. ये प्लांट हार्मोन सेल वॉल को एक्सपांड कर सकते हैं.
सेल वॉल एक्सपांड करने से उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी थोड़ा मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी पॉसिबल होगा। अगर कोई सेल वॉल बहुत স্টিফ है, একটা সেল ওয়াল যদি একদম স্টিফ হয়, খুব শক্ত হয়, তাহলে ওর ভিতরের সেলটাও চাইলেও আর বড় হতে পারবে না। তো এই সেল ক্যানট গ্রো if the cell wall does not allow or if the cell wall is not expanding. Now, this primary cell wall is kind of a elastic structure. तो इसको एक एनालॉजी में सोचो कि सपोज ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, तो एक इलास्टिक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग बहुत एक्सपांड मतलब एक्सटेंड करेंगे, आफ्टर लॉट ऑफ एक्सटेंशन वो जो इलास्टिक स्ट्रक्चर है उसका थिकनेस थोड़ा सा घटेगा। दिस रिडक्शन इन थिकनेस प्राइमरी सेल वॉल का भी होगा। प्राइमरी सेल वॉल जब एक सेल नया फॉर्म होता है उसका प्राइमरी सेल वॉल बहुत थिक होता है। जब सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इट इज से इट हैज पास्ड सम टाइम, सो आफ्टर ग्रोथ ऑफ ए सेल उसका जो प्राइमरी सेल वॉल होगा वो थोड़ा थिन हो जाएगा। तो लेट्स सी, सपोज दिस इज primary cell wall of a cell, of a young cell. तो एक यंग प्लांट सेल एंड ओल्ड प्लांट सेल में सेल तो ठीक है बड़ा हुआ, बट दिस प्राइमरी सेल वॉल इज नाउ मोर थिनर। So primary cell wall gradually decrease its thickness primary cell wall gradually decreases its thickness as the cell grows। तो सेल ग्रो कर रहा है और प्राइमरी सेल वॉल का थिकनेस डिक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम पर सेल को चाहिए और सपोर्ट, बिकॉज उसका बाहर जो सपोर्ट था उसका थिकनेस बहुत घट गया, इट कैन ब्रेक एनी टाइम। So as primary cell wall is gradually diminishing, so as primary cell wall is gradually diminishing, क्या होगा? A new cell wall will be formed. And ये हो गया secondary cell wall. तो secondary cell wall form होगा।
अब सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी के बाहर फॉर्म होगा या अंदर की तरफ फॉर्म होगा? तो सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ फॉर्म होगा, क्योंकि सेल जिधर है उधर ही तो फॉर्म होगा, उसके बाहर कैसे फॉर्म करेगा? दैट मीन्स प्राइमरी सेल वॉल हो जाएगा सबसे बाहर, उसके अंदर आ जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल, उसके अंदर रहेगा सेल। तो secondary cell wall forms toward inner side. So we can see that primary cell wall is very thin. Thin primary cell wall. और इधर एक thick secondary cell wall is formed towards the inner side. And इसके अंदर सेल, तो मेम्ब्रेन। अब देखो प्राइमरी सेल वॉल के बाहर एक सब्सटेंस रहता है which helps one cell to attach with another cell. तो एक प्राइमरी सेल वॉल मतलब ये यंग सेल हो या फिर ओल्ड सेल, किसी भी सेल में प्राइमरी सेल वॉल के भी बाहर और एक लेयर है। दिस लेयर, द नेम ऑफ दिस लेयर इज मिडल लेमेला। मिडल लेमेला। तो एक सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल से भी बाहर एक लेयर होगा, दैट इज मिडल लेमेला। मिडल लेमेला is made up of composed of pectin, major substances pectin and calcium. तो मिडिल लेमेला में होगा पेक्टिन एंड कैल्शियम। पेक्टिन और कैल्शियम ऐसे काम करता है कि पेक्टिन और कैल्शियम एक साथ रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाएगा विच इज कॉल्ड कैल्शियम पेक्टेट। तो कैल्शियम पेक्टेट बनाएगा,
So middle lamella is composed of pectin and calcium. It forms calcium pectate. This calcium pectate acts as a cementing substance. তাহলে এটা সিমেন্টের মতো কাজ করছে। It acts as a cementing substance that holds neighboring plant cells together. एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल के साथ एकदम टाइटली फिक्स रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिडल लेमेला. So middle lamella is composed of pectin and calcium. ये कैल्शियम पेक्टेट बना रहा है. कैल्शियम पेक्टेट एक सीमेंटिंग सब्सटेंस की तरह काम करेगा. एंड दैट्स व्हाई कभी भी हमें इवन कोई भी बुक में देखो कि जो डायग्राम है प्लांट सेल का जो डायग्राम रहेगा वो ऐसा दिखेगा. দেখো প্ল্যান্ট সেলের ডায়াগ্রাম হয়তো তোমরা আগে অনেকবার ড্র করেছো কিন্তু এমন ভাবে ড্র করেছো মোস্ট প্রবাবলি. এবার এটা আসলে কি, কেন এমন ভাবে ড্র করেছি এটা বোঝার জন্য দিস সি so earlier whenever you drew any kind of plant cell diagram, these diagrams almost look like that there are some extensions coming out of the corners. इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेल तो है, ये जो सेल है दिस इज द मेन सेल. तो एक्चुअली ड्रॉ करना चाहिए था ये वाला रेक्टेंगल, बट इसके साथ हम लोग एक्चुअली इस सेल के साथ जो दूसरा सेल, सपोज दिस इज सेल नंबर 1, ये ऊपर वाला एक ऊपर एक सेल है इधर, यहाँ पर से और एक सेल है सेल नंबर 2, यहाँ पर से और एक सेल है सेल 3, यहाँ पर सेल 4, ये सपोज सेल नंबर 5 है. ये 5 नंबर सेल एक नंबर सेल के साथ अटैच्ड कैसे है, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. मतलब একটা सेल के एक सेल को हम लोग कभी प्लांट से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते উইদাউট ডেস্ট্রয়িং আদার সেল. তো একটা সেলকে আমরা আনতে গেলে অন্য সেলেরও ওয়াল ভেঙে ভেঙে এসে পড়ে. এর জন্য আমরা যখনই ড্র করি এমন ভাবে ড্র করি যে whenever we draw this kind of मतलब plant cell we have to draw in this way because एक plant cell को देखना मुश्किल है, मतलब नहीं मिलता. okay? एक सेल को देखना मुश्किल है क्योंकि उसके साथ 4-5 सेल ऐसे ही ड्यू टू दिस सीमेंटिंग सब्सटेंस जो कैल्शियम पेक्टेट है इसलिए अटैच रहता है. सो मिडिल लेमेला को मिडिल क्यों कहा जा रहा है, ये तो एक सेल के रेस्पेक्ट में सबसे बाहर है मिडिल लेमेला. তো সেলের রেসপেক্টে সবচেয়ে বাইরে মিডল লেমেলা, কিন্তু আমরা মিডল কেন বলছি, because it is in the middle of two plant cell. दो plant cell suppose सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 5, इसके मिडल में जो भी सब्सटेंस रहेगा ये सब्सटेंस क्या होगा, मिडल लेमेला. इसके वजह से ही दो सेल वॉल अटैच्ड होगा.
तो क्या है मिडिल लेमेला? सो टू नेबरिंग प्लांट सेल्स के मिडिल में जो रहेगा वो होगा मिडिल लेमेला, और मिडिल लेमेला इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड कैल्शियम। अब देखो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, secondary cell wall is composed of waxy substances, मतलब हाइड्रोफोबिक। वैक्स के अंदर से तो पानी नहीं जा सकता। Secondary cell wall is composed of waxy substance. The name of these waxy substance that are present in secondary cell wall is lignin, suberin. So lignin and suberin बहुत कॉमन वैक्सी सब्सटेंस है जो बाद में प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स में भी मिलेगा। लिग्निन, सुबेरिन, प्लांट एनाटॉमी चैप्टर में भी मिलेगा। এর মানে কি যে যদি সেকেন্ডারি সেল ওয়াল এসে পড়ে ওদের মাঝখান দিয়ে জল যেতে পারবে না। So once secondary cell wall arrives or secondary cell wall is being synthesized in a cell, water cannot pass through it. वाटर अगर पास नहीं करेगा तो स्लोली सेल विल डाई। इसका मतलब क्या हो गया कि सेकेंडरी सेल वॉल आने के ज्यादा दिन तक सेल सरवाइव नहीं करेगा, सेल विल डाई। তো সেলটা যখন অনেক বুড়ো হয়ে গেছে, ওল্ড, তোর মধ্যে আসছে সেকেন্ডারি সেল ওয়াল। সেকেন্ডারি সেল ওয়াল আসার পরে ও বুড়ো হয়ে মারা গেছে। মরে গিয়েও বেঁচে থাকে বলবে না, বাট इन केस ऑफ प्लांट सेल देखो इन इन एनिमल सेल, एनिमल में क्या होता है कि जो भी सेल डेथ हो रहा है सब सेल बॉडी से शेड हो रहा है, বুঝো তো? তো আমাদের বডিতে যত সেল মরে যাচ্ছে সব কিন্তু বডি থেকে পড়ে যাচ্ছে। মোস্ট অফ দ্য টাইম দিস you know why the color of urine is yellow? কেন? হ্যাঁ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कहाँ से आता है? हाँ, কোথেকে আসে? डेड सेल, डेड, which dead cells? रेड ब्लड सेल्स, डेड रेड ब्लड सेल्स। सो डेली हमारे बॉडी में बहुत सारा रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज आर डाइंग। तो ऑल दिस आरबीसीज, इतने सारे आरबीसी जो डेड हो रहा है, आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन। इसके लिए आरबीसी, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है? उसके अंदर है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को जब स्प्लीन एंड लीवर क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को जब मेटाबोलाइज करेगा, हीमोग्लोबिन के ऊपर कुछ रिएक्शंस करके हीमोग्लोबिन से बनता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। दैट मींस कॉन्स्टेंटली बाइल जो सिक्रेट हो रहा है ये फॉर्म होने के लिए आरबीसी डेड होना जरूरी है।
ডেইলি প্রচুর আরবিসি মরছে, प्रचुर आरबीसी থেকে। दैट मीन्स एनिमल बॉडी में जो भी सेल्स डेड हो रहा है वो सेल्स बॉडी से किसी ना किसी फॉर्म में निकल रहा है बॉडी से, ঠিক আছে। स्किन सेल्स एवरी 24 आवर्स स्किन सेल्स आर डाइंग, ঠিক আছে। তো স্কিন সেলস আর কনস্ট্যান্টলি ডাইং ইন এভরি 24 আওয়ার্স। তাহলে আমাকে যদি ধরো এখানে কেউ someone is a criminal here আর ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে বলেছে যে আমার ক্রিমিনালটা বের করতে লাগবে, so I have to find out a big criminal who is sitting here, so I just have to collect one piece of your old cloth, ठीक है। तो कोई भी कपड़ा जो धोया नहीं है, मुझे बस एक क्लोथ चाहिए। सबके क्लोथ्स में बहुत सारा सेल्स रहता है और ये सेल एक एक सेल থেকে एक सेल मिल गया मतलब 46 डीएनए मिल गया, 46 क्रोमोसोम्स, 46 डीएनए मिल गया मतलब डीएनए एरे, माइक्रो एरे कुछ टेक्निक्स है उसको यूज करके वो पूरा बॉडी पैटर्न, फेस शेप, फेस पैटर्न निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ह्यूमन में, एनिमल्स में डेड सेल्स कॉन्स्टेंटली बॉडी से शेड हो रहा है, बट प्लांट्स में डेड सेल्स गुलो डेड सेल्स অ্যাকুমুলেট, ডেড সেলস গুলো জমতে থাকে। তো একটা গাছের থেকে যে আমরা কাঠ পাই, the wood we get from a plant, these are dead part of the plant। तो प्लांट के अंदर का टोटल पूरा जो सिलेंडर है अंदर की तरफ, that part is totally dead, तो प्लांट अंदर से मरा हुआ है। तो प्लांट के सिर्फ बाहर वाला पार्ट these are living, ठीक है। तो dead cells constantly accumulate inside plants और इसका जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी है प्लांट का, तो ऐसा तो नहीं है कि प्लांट उठ के यूरिन करने के लिए चला गया। तो सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस उसके वैक्यूल में स्टोर हो रहा है, তো उसके बाद সেল ডেড हो रहा है। তো প্ল্যান্টের মধ্যে কি হয়, সেলটা মরে গেলে অনেক কাজ আছে, ইট গিভস সাপোর্ট, শুনতে পাবে। তো কি টিস্যু ফর্ম করে, হোয়াট কাইন্ড অফ টিস্যু ইজ ফর্মড, হোয়াট কাইন্ড অফ প্ল্যান্ট টিস্যু ইজ ফর্মড when secondary cell wall arrives, কি টিস্যু, ডেড টিস্যুটার নাম জানি কি, হ্যাঁ, sclerenchyma, sclerenchyma is a dead plant tissue। तो secondary cell wall the secondary cell wall doesn't allow water to pass through, the cell dies and form sclerenchyma tissue। কি হচ্ছে,
दैट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल रहेगा, पेरेनकाइमा में प्राइमरी सेल वॉल रहेगा, কোলেনকাইমা में प्राइमरी सेल वॉल रहेगा। আমরা যদি যদি একটু প্ল্যান্ট টিস্যু মনে করি, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, परमानेंट में है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा को छोड़कर बाकी सारे टिश्यूज में क्या होगा, सिर्फ ओनली प्राइमरी सेल वॉल। Now there is a region where primary, secondary and middle lamella is absent. उस रीजियन को क्या कहेंगे? So इधर देखो, so the outermost layer is middle lamella. अब मिडिल लेमेला से ठीक है, मिडिल लेमेला के दोनों तरफ, इस साइड में भी प्राइमरी सेल वॉल होगा, इस साइड में भी प्राइमरी सेल वॉल होगा, बट ये सेल 2 का प्राइमरी सेल वॉल है, सेल 2 का प्राइमरी सेल वॉल, इधर होगा सेल 1 का प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाद इधर है सेकेंडरी, इधर है सेकेंडरी। So the region where there is no primary cell wall and middle lamella, usually क्या होता है कि प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला सब सेल में रहते हैं, ठीक है, सेल यंग हो या फिर ओल्ड हो, सब सेल में एटलीस्ट प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला तो रहेगा ही। सेकेंडरी ओल्ड में रहेगा, यंग में नहीं रहेगा, सो इसलिए इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। तो द रीजन वेयर देयर इज नो प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला, उस रीजन को क्या कहेंगे? इस रीजन को कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। Plasmodesmata is a region
where there is no primary cell wall and no middle lamella. तो अगर प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लेवल दोनों नहीं है, then that part is plasmodesmata. अब प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू पास होगा कुछ ट्यूब that connects both the cytoplasm. So plasmodesmata helps in connecting two plant cell cytoplasm, but two neighboring cytoplasm via a tubule. इस ट्यूब को कहते हैं डेस्मोट्यूबुल. via desmotubule. तो एक साइटोप्लाज्म, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब की तरह कुछ मेम्ब्रेनस ट्यूब दोनों पार्ट को कनेक्ट करके रखा. एंड दैट ट्यूब इज डेस्मोट्यूबुल. और वो पोर्शन, दैट रीजियन इज प्लाज्मोडेस्माटा. तो प्लाज्मोडेस्माटा इज द रीजियन जहां पर सेल वॉल नहीं है, कुछ भी सेल वॉल नहीं है, ना प्राइमरी है ना मिडिल लेमेला भी है. तो उस रीजियन से कुछ ट्यूब पास होगा, दोस ट्यूब्स आर डेस्मोट्यूबुल. So this is cell wall. একটা এক্সট্রা ফ্যাক্ট লিখে রাখতে পারো, that tertiary cell wall is also present in some cells. Tertiary cell wall, if present, it is composed of a substance called xylem. Xylem না কিন্তু, xylem হচ্ছে টিস্যু, xylem is a substance. ঠিক আছে, xylem. तो tertiary cell wall is composed of a waxy substance. ये भी एक waxy substance है, इसका नाम है xylem. तो बस ये हो गया सेल वॉल पार्ट. Then we have ribosome. Ribosome discovered by George Pellet, also called pellet particles. Ribosome is also called pellet particle. Ribosome is a membranous cell organelle. तो उसमें कुछ भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो जो भी एब्सेंट रहता है उसको हम लोग सामने ए बिठाते हैं. Ribosome is a membranous cell organelle.
ठीक है, राइबोसोम के अंदर अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसमें है क्या? So it is composed of rRNA. तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आरएनए है, rRNA। आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड। घुमावे ना। Composed of rRNA and प्रोटीन। तो राइबोसोम के अंदर अब rRNA मींस राइबोसोमल आरएनए। Let's see RNA, types of RNA, major types of RNA. So 3 major types of RNA are there. सेल में वैसे तो आरएनए बहुत तरह का हो सकता है, जब क्लास 12 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम के चैप्टर पढ़ेंगे तब। बट अभी वी आर जस्ट लुकिंग एट 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए। mRNA, एक हो गया tRNA, and another is rRNA. So mRNA डीएनए से मैसेज लेकर आएगा, दिस इज मैसेंजर आरएनए। tRNA ट्रांसफर, rRNA राइबोसोमल। राइबोसोमल आरएनए इज द मोस्ट स्टेबल। तो सेल में सबसे ज्यादा टाइम जो आरएनए आके रह सकेगा साइटोप्लाज्म में, दिस इज rRNA। और बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, लीस्ट स्टेबल और सबसे ज्यादा अनस्टेबल इज mRNA। सेलेर मध्य যখন, तो सेल में जब आरएनए आएगा, आरएनए सेल में स्टेबल रह सकता है या फिर डिग्रेड हो सकता है, ब्रेक हो गया। डिग्रेड हो गया तो हम लोग कहेंगे अनस्टेबल, और लीस्ट स्टेबल तो mRNA इज लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ से हम लोगों को एक ऑर्डर मिल गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दैट मीन्स स्टेबिलिटी के हिसाब से rRNA सबसे ज्यादा स्टेबल है, tRNA उससे कम, mRNA सबसे कम। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। Now to find out the density of राइबोसोम, राइबोसोम की डेंसिटी को निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो सेडिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट। The sedimentation experiment is done. इधर क्या किया जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब में एक स्पेसिफिक फ्लूइड, नॉर्मली
डीएनए आरएनए राइबोसोम रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो ফ্লুইড লিয়া যেতে হয় তেমন একটা ফ্লুইড নেওয়া হবে, এমন একটা সলিউশন নেওয়া হবে যে সলিউশনটা জলের থেকে বেশি ঘন, जिसका डेंसिटी पानी से ज्यादा है। यूजुअली एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो फ्लूइड लिया जाता है दिस इज सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में राइबोसोम्स को राइबोसोम को जब एक सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाला जाएगा, राइबोसोमটা এত হালকা, राइबोसोम नॉर्मली डेंसिटी इतना कम है कि ये ऊपर फ्लोट करेगा, রাইবোসোমটা উপরে ফ্লোট করছে। এবার আমি যদি জোর করে এটাকে সেন্ট্রিফিউজ করি, সেন্ট্রিফিউজ করলে পরে তো ওর মধ্যে একটা ফোর্স পড়ছে, রাইবোসোমস গুলোর মধ্যে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স যাচ্ছে। ডিউ টু দিস সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স राइबोसोम आस्ते आस्ते नीचे दिखे जावे। हमें निकालना होगा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, कितना जल्दी ये सेडिमेंट हो रहा है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो इसके निकालने के लिए सपोज आफ्टर सम टाइम আমি যদি র্যান্ডম ধরে নেই সে 1 आवर, 1 ঘন্টা ধরে আমি ঘোরাচ্ছি এটাকে, से आफ्टर 1 आवर राइबोसोम्स कितना दूर या फिर कितना नीचे गया है इस टेस्ट ट्यूब में। ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में बहुत सारा मार्किंग है, मार्किंग रहेगा, तो हमें पता है कितना नीचे जा रहा है ये जो राइबोसोम। सपोज आफ्टर 1 आवर सपोज आफ्टर 1 आवर राइबोसोम इधर इधर आ गया, तो 1 ঘন্টা পরে রাইবোসোম এতটুকু এসেছে মাত্র। So we'll find out the distance. सपोज कुछ एक डिस्टेंस निकला है इधर से, और ये जो मार्किंग है सपोज ये मिलीमीटर में है मार्किंग, तो हमें निकला कि ठीक है ये x मिलीमीटर गया, तो हमारा रेट क्या है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हो गया x मिलीमीटर पर आवर। मिलीमीटर के हिसाब से। तो यहां से सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकाला गया। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट so to find out sedimentation coefficient, a Wedberg unit, this is a standard राइबोसोम के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस में क्या किया गया कि वो जो x और y जो भी वैल्यू है और उसके साथ जो डिस्टेंस का यूनिट है उसको स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस में लाने के लिए, তো এখানে অনেক কিছু আছে, শুধু শুধু কমপ্লিট ডিটেলস পসিবল না এখন যাওয়া। তো x ডিস্টেন্স ইউনিট এন্ড পার ইউনিট টাইম,
এই যে এক্স ডিস্টেন্স ইউনিটটা, এইটা একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড প্রসেসে কোনো ইউনিট না রেখে, without keeping any specific unit of distance here, there is a so there are some standard numbers like 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. These are some numbers जहां पर राइबोसोम्स को असाइन किया गया, 30, 35, 40. ठीक है, एंड ये जो पर यूनिट टाइम है, इसको एस कहा गया, फेडवर्ग यूनिट. दैट मीन्स एस जो है उसका यूनिट है जस्ट वो एक्चुअली पर यूनिट टाइम होगा, एस का यूनिट. एंड इसमें जो नंबर्स है, सपोज 70, 80, 30, 50, 60, 40, ये सारे नंबर्स राइबोसोम्स को दिया गया. तो क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, कुछ एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, हमें कुछ नंबर्स मिले. उस नंबर से मतलब कुछ ऐसे, देखो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस मतलब वर्ल्ड के हर एक लैब में अगर किया गया तो बाद में एक एक जगह पर एक एक नंबर आएगा बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन. नंबर अलग अलग आ सकते हैं, तो इसलिए एक बार में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में कुछ नंबर असाइन किया गया सारे राइबोसोम्स को, या फिर राइबोसोम्स के भी सब यूनिट्स को. उस नंबर के हिसाब से प्रोकैरियोट्स को 70s मिला और यूकैरियोट को 80s मिला. बट प्रोकैरियोट के भी स्मॉलर सब यूनिट को 30s, লার্জার সাব ইউনিট को 80s. তাহলে এই নাম্বারগুলো আসলে কিছু এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু যেটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা হয়েছে, एंड वी आर कॉलिंग इट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इसको एस से डिनोट किया जाবে. तो मैक्सिमम এখানে क्वेश्चन এটা আসতে পারে যে व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस. तो एस के यूनिट में डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ टाइम है, पर यूनिट टाइम है. डिस्टेंस को वहां से हटाया गया क्योंकि कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस इधर नहीं रखा, जस्ट एक नंबर है और उसके साथ एस है. तो नेक्स्ट আমরা রাইবোসোমের ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, রাইবোসোমস. হ্যাঁ, এই যে নাম্বারগুলো, এটা দেখো আমি তো এখানে মিলিমিটার লিখেছি, এটা মাইক্রোমিটার হতে পারে বা আরো ছোট কিছু একটা ইউনিট হতে পারে. তো ডিপেন্ডিং অন স্মল টিউব, এখানে একটা স্পেসিফিক নাম্বারে এসে সায়েন্টিস্টরা সেটেল হয়েছে. এই নাম্বারটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবের মধ্যে করে এই যে নাম্বারটা পাওয়া গেছে, ওই নাম্বারটাকে প্রত্যেকটা রাইবোসোমকে অ্যাসাইন করা হয়েছে. রাইবোসোমের কতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে ওই ডিস্টেন্সের নাম্বার. এখন তার ডিস্টেন্সটা রাখা হয়নি, হয়তো 70 মাইক্রোমিটার ট্রাভেল করেছে 1 সেকেন্ডে. এটা তো আমি 1 আওয়ারের কথা বলছিলাম.
হ্যাঁ, ডিস্টেন্সের নাম্বার, ডিস্টেন্সের সামনে নাম্বারটা, ডিস্টেন্সটা রাখেনি আর কি। See, ribosomes are composed of two subunit. Now the two subunit, larger and smaller, larger subunit and smaller subunit binds with each other. देखो, larger and smaller subunit normally अलग अलग रहेगा, एक साथ नहीं रहता। ये सिर्फ तभी बाइंड करेगा जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा। So it binds with each other only during protein synthesis. With the help of magnesium. Ribosomes bind करेगा with the help of magnesium. मैग्नीशियम अगर साइटोप्लाज्म में बहुत कम है तो सेल क्या नहीं कर पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस করতে পারবে না। तो सेल के अंदर अगर मैग्नीशियम बहुत कम होगा तो सेल प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा। कितना कम? कंसंट्रेशन इज 0.3 मिलीमोलर। ठीक है, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन अगर 0.3 मिलीमोलर कंसंट्रेशन से कम होगा then larger and smaller subunit cannot bind with each other. What is molar? What is molarity? 1 liter. So number of moles of what? Solute. So number of moles of solute per 1 liter solution. तो एक सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है? तो larger and smaller subunit cannot bind. This is called critical magnesium concentration. So 0.3 millimolar, this is critical magnesium concentration. So see, prokaryote, larger subunit is 50s.
and smaller subunit is 30s. But एक साथ prokaryotic ribosome is 70s. यूकैरियोट्स में देखो, इधर बहुत सारा थोड़ा स्पेस रखना, क्योंकि हमें और भी बहुत कुछ जानना है इधर. यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80s and इसका larger subunit is 60s and smaller subunit is 40s. अब देखो, लार्जर सब यूनिट में आरआरएनए भी है और प्रोटीन्स भी है. स्मॉलर सब यूनिट में आरआरएनए भी है, प्रोटीन भी है. नाउ किस टाइप का आरआरएनए है वो देखना होगा. सिमिलरली 60s में भी आरआरएनए प्रोटीन, 40s में भी आरआरएनए प्रोटीन. ক্রিটিক্যাল ম্যাগনেসিয়াম কনসেন্ট্রেশন মানে এই কনসেন্ট্রেশনটা সেলের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট. এর উপরে থাকতে লাগবে ম্যাগনেসিয়াম, এর নিচে থাকলে সেল মরে যাবে, ফটোসিনথেসিস করতে পারবে না. সেল মরে গেছে মানে তুমিও মরে যাবে. अब देखो, यहाँ पर जो आरएनए मिलेगा, सॉरी आरआरएनए जो मिलेगा, ये आरआरएनए का भी एक वेटबर्ग यूनिट है. लेकिन जो आरआरएनएটা পাবো, এইটাকেও ওই सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाल के अगर देखेंगे तो उसका भी एक डेंसिटी निकलेगा, और इसका डेंसिटी निकलता है 16s आरआरएनए. तो आरआरएनए का डेंसिटी, इसके पहले तक हम लोग सिर्फ राइबोसोम या फिर राइबोसोम के सब यूनिट के डेंसिटीज देख रहे थे. नाउ वी आर लुकिंग एट आरआरएनए डेंसिटी. और 50s में सिर्फ एक आरएनए नहीं मिलता, उधर एक मिलता है 23s, एक मिलता है 5s. दो अलग अलग आरएनए मिलेगा, एक का डेंसिटी ज्यादा, एक का डेंसिटी कम. यूकैरियोट के 60s में जब जाओगे, उसके आरएनए में देखोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए. एक है 28s, एक है 5s, एक है 5.8s. ये जो नंबर्स है अभी सेल चैप्टर में उतना यूज नहीं होगा, बट जेनेटिक्स में यूज होगा बाद में. ऑल दिस नंबर्स आर प्रेजेंट इन जेनेटिक्स आल्सो. और इसका जो आरआरएनए होगा वो होगा 18s. That means eukaryotic ribosomes are composed of 4 types of rRNA. 4 types of rRNA. And prokaryotic ribosomes are composed of 3 types of rRNA. तो rRNA के types inside ribosome.
এখানে কিছু এক্সট্রা জাস্ট there are 34 types of protein in 50s subunit of 70s ribosome. There are 21 types of protein in 30s subunit of 70s ribosome. ये कुछ टाइप्स है মনে রাখার দরকার পড়বে না, কিন্তু আর আর আরএনএ গুলো মনে রাখতে লাগবে। প্রোটিন গুলো না মনে রাখলেও চলবে। rRNAs are important because rRNAs can act as enzyme. আমরা এটা বায়োমলিকুলসই দেখে নেব আর নেক্সট বায়োমলিকুলস যখন চ্যাপ্টারটা দেখব। তো রাইবোসোমস বাস রাইবোসোম কি করে? প্রোটিন সিনথেসিস। আর ও প্রোটিন সিনথেসিস করার জন্য ইনফরমেশনটা থাকে কোথায়? एमआरएनए। তাহলে एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके आएगा, राइबोसोम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो फंक्शन বেশটা দিয়ে দেবো। এই হচ্ছে तो राइबोसोम का फंक्शन बस ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, फर्स्ट पॉइंट। बट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन बनाते के लिए की लगे, प्रोटीन कहाँ से सिंथेसिस करेगा? इसको चाहिए अमाइनो एसिड। यूजिंग अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स कहाँ पर मिलेगा? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड लेकर उसको प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यूजिंग अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड्स रहेगा, अमाइनो एसिड्स 20 टाइप्स का हो सकता है, अलग अलग अमाइनो एसिड। तो কোন অ্যামাইনো এসিডটা আগে বসবে কোনটা পরে বসবে? সো হুইচ অ্যামাইনো এসিড উইল কাম ফার্স্ট, হুইচ উইল কাম সেকেন্ড, হুইচ উইল কাম থার্ড। যদি একটু পাল্টে যায় প্রোটিনও পাল্টে যাবে। তাহলে অ্যামাইনো এসিড কোনটা আগে বসবে কোনটা পরে বসবে, এই জিনিসটা কোড। সো দ্য সিকোয়েন্স অফ অ্যামাইনো এসিড, at what sequence amino acids will be placed, these are present in some code। और वो कोड रहेगा किधर? मैसेंजर आरएनए में, जो मैसेज लेकर आ रहा है। तो मैसेंजर आरएनए में कोड है, उस कोड को फॉलो करके अमाइनो एसिड को प्लेस करेगा राइबोसोम। और उसके उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप का प्रोटीन बन सकता है। তাহলে আমাদের শরীরে মিলিয়নস অফ প্রোটিনস ক্যান বি ফর্মড, আলাদা আলাদা প্রোটিন। নর্মালি সাপোজ আমাদের आरबीसी, नॉर्मली आवर आरबीसी इज सर्कुलर और साइड से देखेंगे तो बाइकनकेव। दिस इज नॉर्मल आरबीसी। बट अफ्रीका में बहुत सारे पर्सन्स में
सिकल सेल आरबीसी मिलता है, तो सिकल की तरह आरबीसी का शेप ऐसा हो जाएगा। सिकल आरबीसी डिफरेंस क्या है? सब सेम था, जस्ट एक एक कोड, एक कोड चेंज हो गया। जस्ट एक कोड चेंज होने से एक अमाइनो एसिड चेंज होगा। एक अमाइनो एसिड चेंज होने से पूरा प्रोटीन चेंज हो सकता है, और पूरा प्रोटीन चेंज होने से पूरा सेल चेंज हो सकता है। तो फिर एक जस्ट एक जीन्स में एक कोड चेंज होने से, तो एमआरएनए में जो कोड रहता है उस कोड्स को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड। तो अगर एक भी कोड थोड़ा सा चेंज हो गया, तो उसके वजह से एक অ্যামাইনো অ্যাসিড যে জায়গায় বসানোর কথা ছিল অ্যামাইনো অ্যাসিডটাকে ওইটাকে আরেকটা জায়গায় বসানো হয়েছে। अमाइनो एसिड मिसप्लेस होने से पूरा जो प्रोटीन सीक्वेंस, प्रोटीन में 1000 अमाइनो एसिड है, जस्ट एक अमाइनो एसिड मिसप्लेस हुआ, उसके वजह से प्रोटीन ऐसा चेंज हो सकता है कि प्रोटीन जिस सेल में है उस सेल का शेप भी ऐसा चेंज हो सकता है। তো ওদের মধ্যে তো এই আরবিসি নিয়ে তো আরো বেশি দিন বাঁচবে না, এমন টাইপের আরবিসি নিয়ে। सो फर्स्ट सेल्स विल डाई जब आरबीसी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है, हम इसको कहते हैं एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया इज ए डिजीज। ঠিক আছে।